everyone, I'm Aditi from myonlineshiksha.com. I hope you're doing well and you're keeping safe. So today we have with us Mr. Sandeep Singh Art, who's going to discuss all about MATLAB. I welcome you, sir, on behalf of myonlineshiksha.com. Hello, sir. I welcome you on behalf of myonlineshiksha.com. I hope you're doing well. Yes, Aditi. Thank you very much. I hope you all are going good and you're safe around there. Yes, sir. Yes, sir. I hope the same for you. So, sir, today we'll be discussing on MATLAB. So, let's just start by knowing what exactly MATLAB is. So, can you tell our viewers what exactly the concept is and how it works? Definitely, Aditi. I will be loving to tell about it. MATLAB is a software which was developed by MathWorks usually. Initially, people started using it for mathematical operations. Later on, whoever, like even if you are a financial person, even you can use that MATLAB software to check your financial growth and all the analysis over there. So right now, MATLAB is a software which is entering everywhere. You need not to be an engineer, even if you are a doctor, if you want to analyze any of the ECG or any of your scanning reports, yes, definitely you can do it. MATLAB is so beautiful that you can use it anywhere. Okay. So it has a lot of utilities. So of course, in engineering also or in any other field, as we proceed with the mathematical operations, it becomes very difficult and very cumbersome for us to solve these equations and everything. So yes, how does it make these equations and make maths easier for the students? See, for example, now if you are solving any differential equation or integration equation, on paper you can solve it and you can see it. If you want to analyze it, like if you want to make it, okay, अगर आपको चाहिए कि ये सही है गलत है, आपको अगर check करना, if you want to check it whether it is really correct answer what you are getting it, you can just type the expression over there. It will give you fadak like take this answer. Acha, okay. So it's very easy when it comes to mathematical computation and everything. So of course, sir, if we are there to know about a lot of technologies or technologies like MATLAB, we of course do it just because we have to get jobs or for employment purposes, of course. So sir, how is MATLAB useful in job procurement? See, as I told you in initial during this conversation, you can enter anywhere. You are a financial guy, you want to go with the MATLAB tool, yes. You want to analysis your engineering tool, yes. If you are an electronics, yes. If you are mechanical, yes. If you are aerodynamic, yes. यार तुम एक A to Z कुछ भी नाम ले लो, मैं बोल दूंगा कि हाँ यार इसमें MATLAB तुम डाल सकते हो. अच्छा, तो ये मतलब हाँ जी. एम्प्लॉयमेंट छोड़ो, अगर आप कोई एम्बेडेड सिस्टम, अगर आप एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर बनना चाहते हो तो MATLAB सीख लो, क्योंकि MATLAB में you have a toolbox. You can directly connect your embedded board. You can code it in your MATLAB. You can import. वहाँ पे आप डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं. यार तुम कुछ भी कर लो, MATLAB है वहाँ पे. सही में बोल रहा हूँ तो मैंने अपना करियर में अपने MATLAB से शुरू किया है और एम्बेडेड में खत्म किया है. मेरे को दोनों पता है अभी. अच्छा जी. सो सर, हम ऑब्वियसली अगर कुछ सीखते हैं तो उसके लिए राइट गाइडेंस भी हमको चाहिए होता है. तो ऑफ कोर्स आप जैसे प्रोफेसर्स जो है MATLAB को इजी बनाने में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, और ऐसे ही कुछ कोर्सेज भी आपके हमारे myonlineshiksha.com पे अवेलेबल है. तो सर आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या एस्पेक्ट्स आपने कवर किए हैं इसमें और कैसे आपने इस MATLAB को इजी कर दिया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए. हेलो. जरूर मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जी सर. हाँ जरूर आदिति. यहाँ पे मैंने जो कोर्स में मैंने बताया है वो किक स्टार्ट करने के लिए, ये किक स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मैंने बोला है कि इट्स अ किक स्टार्ट फॉर द MATLAB कोर्सेज.
मैंने पूरा भी ऐसा नहीं बताया कि यार इसमें ऐसा है अंदर, इसके अंदर। मैंने सिर्फ उसको दिया है कि मैंने क्रीम लेयर दिया है। मतलब आपको बोले कि पूरा केक है, तो मैंने केक में आपको सिर्फ क्रीम दिया है। ब्रेड तो आपको ही बनाना है। हाँ, अगर आपको ब्रेड बनाना है तो वो दूसरा कोर्स हम बना हम बना चुके हैं, जो आप ले सकते हैं जी। अभी सिर्फ हाँ, मेरे को सिर्फ मैटलैब जानना है, क्या क्या मैटलैब में है, कैसा मेरा इजी कर सकता है मेरा जॉब, और या कैसा इजी मेरे को मैटलैब लगता है। ये मैंने सिर्फ उसको लेयर दिया है। पहले तुम चखो मैटलैब को, तुम चखो, उसके बाद तुम खाओ। ऐसा नहीं कि बिना चख के आप खा सकते हैं। अगर आप कोई भी कुछ भी बना रहे हैं खाना, तो आप पहले चखते हैं ना, हाँ अच्छा नहीं है, अभी तो आप जानते हैं कि हाँ यार पूरा खाना है मेरे को अभी। पहले आप सैंपल देखते हैं, उसके बाद पूरा खाते हैं। तो ऐसे ही है कि मैंने आपको सिर्फ सैंपल दिया है। ओके। पहले तुम जान लो उसके मैटलैब क्या है, उसके बाद तुम कर सकते हो। क्योंकि मैंने वहां पे बोला है कि अगर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, क्या मैं मैटलैब सीखता हूँ? हाँ जरूर, मगर मैटलैब मैकेनिकल के लिए दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दूसरा है, बायोमेडिकल्स के लिए दूसरा है, एरोडायनेमिक्स के लिए दूसरा है। आप पहले तो चूज को कर लो कि आपको क्या सीखना है मैटलैब में। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ सीख सकता है। आप बेसिक सीख लीजिए पहले, कैसा काम करना है, कैसा एनवायरनमेंट दिखता है, क्या क्या है उसमें, क्या क्या आप सीख सकते हैं उसमें, पहले ये तो जान लीजिए। उसके बाद क्या सीखना है आपको एक आइडिया आ जाएगा, हाँ यार मेरे को ये सीखना है जी, क्या आप मुझे सिखा देंगे जी। ऐसा नहीं है कि हम सबको सब कुछ पढ़ो सकते हैं, नहीं। आप क्या खाना चाहते हो हमें बोलिए, हम वो आपको बना के देंगे। ओके सर, एब्सोल्युटली आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पुट किया है। एंड आई थिंक आपके जो कोर्सेज है myonlineshiksha.com पे मैटलैब के, तो काफी अच्छा रिस्पांस मिले। वी होप फॉर द बेस्ट। और ऑफ कोर्स आप जितने लूसिड लैंग्वेज में अभी हमसे बात कर रहे हैं, आई होप व्यूअर्स को वही चीज भा जाए और वो हमारे कोर्सेज को साइन अप करें। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे वो सारे बच्चों को या सारे स्टूडेंट्स को, दोज हु वांट टू एक्चुअली ऑप्ट फॉर मैटलैब बट आर अ बिट कंफ्यूज्ड, यू नो, करियर है इसमें, नहीं है, एग्जैक्टली आप क्या बोलेंगे इन बच्चों को? अरे जैसे कि मैंने आपको बताया कि करियर ऐसा नहीं है कि आपको मैटलैब सीख लिया, हाँ यार तुम्हें बुला लिया इंटरव्यू को, हाँ भाई तुम्हें मैटलैब पता है, आ जाओ बच्चे। नहीं, आप इंटरव्यू में बता सकते हैं सर मेरे को मैटलैब पता है। ये आपका एडिशनल स्किल है। अगर आपको बोले कि यार मेरे को मैथ्स पता है, साइंस पता है, तुम्हारी कंपनी कोई नहीं लेगा। सही है ना? मैटलैब एक टूल है, ठीक है। अगर हाँ आप बोले कि सर मैंने मैटलैब में बेसिक्स पता है, मैं इतना कुछ सीख सकता हूँ, मेरे को बेसिक्स का जरूरत नहीं है, मेरे को बेसिक्स पता है, मैं आगे सीख सकता हूँ, हाँ जरूर। कि करियर का हिसाब से आप देख रहे हैं तो आप करियर स्पेसिफिक देख सकते हैं। राइट, ओके, है ना? अगर आप देखिए, मान लीजिए कि आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपका करियर है इंजीनियरिंग जी, या आपका करियर है आपको कुछ करना है दूसरा, ना इंजीनियरिंग करना है, कुछ और कुछ करना है जी जी। अगर आप कब डिसाइड करते हैं? जब आप एसएसएलसी में आते हैं तभी आपको डिसाइड करते हैं मेरे को यार पीयू में मेरे को कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है जी। सेकेंडरी में आप डिसाइड कर लेते हैं यार मेरे को साइंस की तरफ जाना है या कॉमर्स की तरफ जाना है। ऐसा ही है कि अगर आप मान लीजिए कि हाँ मेरे को मैटलैब में करियर बनाना है, मैटलैब का करियर बहुत सारे है अभी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, आप एक नाम बोलिए मैं बताऊंगा यार इसमें मैटलैब है। A to Z मेरे को कोई भी फील्ड बोल दीजिए तो मैं बताऊंगा यार इसमें है। एरोडायनामिक्स चाहिए है, ऑटोमोबाइल चाहिए है, ए में कितने चाहिए आपको बता दीजिए, मैं 100 का 100 बोल दूंगा। एग्रीकल्चर चाहिए, वो भी है। बायोमेट्रिक चाहिए, बायोकेमिकल चाहिए, क्या चाहिए आपको, बायोलॉजिकल चाहिए, न्यूरोलॉजिकल चाहिए, तुम डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर में भी मैटलैब चाहिए, हाँ भाई है। अच्छा जी, मतलब इसके यूजेस जो है मल्टीफेसेटेड है आई थिंक।
मतलब काफी लोगों को ये मिथ होता है कि शायद बायोलॉजी है तो मैटलैब यूज नहीं होगा, या फिर मेडिकल में जाना है मैटलैब यूज नहीं होगा। तो शायद ये शायद मिथ आपने आज बर्स्ट की है, राइट? एक्चुअली क्या है कि बताइए, अभी पहले था कि यार मैकेनिकल इंजीनियर सिर्फ मैकेनिक ही कर सकता है। जी। अभी वो मैकेनिकल इंजीनियर रोबो बना सकता है। अब रोबोट के लिए क्या चाहिए? आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, सब कुछ चाहिए। जी जी। सब कुछ मिक्स हो चुका है इस टेक्नोलॉजी के बगैर। अगर आप बायोमेडिकल में जाए, मेडिकल में जाइए, तो वहां पे रोबोटिक काम ही यूज कर रहे हैं, वहां पे सेंसर्स यूज नहीं कर रहे हैं। अब अगर सेंसर को यूज करें तो उसका एनालिसिस नहीं चाहिए। अगर एनालिसिस करना चाहिए तो एनालिसिस टूल कौन सा यूज करेंगे? ऑफ कोर्स मैटलैब ही करेंगे। मैटलैब पहले जैसे कि बताता है कि मैटलैब का पूरा फुल फॉर्म है कि मैट्रिक्स लैबोरेटरी करके। लैबोरेटरी मतलब सब कुछ चल रहा है वहां पे। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट बना लीजिए, चलता है वहां पे, राइट। जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ, आप A to Z कोई भी नाम ले लीजिए, मैं बता दूंगा यार इसमें मैटलैब है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा करियर आप चूज कर रहे हैं। चूज करना है, करेक्ट। ये आपका ये स्ट्रेंथ है बस। सर मेरे को मैटलैब पता है सर, वाह। अब मैं एम्बेडेड इंजीनियर हूँ। मैं जब इंडस्ट्री में बोला सर मेरे को मैटलैब पता है, क्या यार तुमने बताया नहीं, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था। तो एडिशनल है कि मेरा वहां पे ना दूसरा तरीके से मेरे को देखना शुरू कर देंगे, यार इसको और कुछ भी पता है, ये हमारा काम आ सकता है। राइट राइट। मतलब मैटलैब अगर आप सीख लेते हैं तो आपका ये स्किल तो कभी वेस्ट जाएगा ही नहीं। एंड आई थिंक आप अगर कहीं पे भी जाओगे तो फिर आपको ये चेरी ऑन द केक ही होगा कि आपको मैटलैब आता है। आप नमक जैसे बन जाएंगे, कोई भी चीज में आप फिट हो जाएंगे। नमक या शक्कर बन जाएगी, कोई भी जगह आप जाके फिट हो जाएंगे। जी जी जी। सर आपने काफी ज्यादा इजी करके शायद आज बताया है द इम्पोर्टेंस ऑफ मैटलैब एंड हाउ इट्स यूज्ड इन अ लॉट ऑफ other industries as well apart from the very technical one। और काफी अच्छे इंसाइट्स सर आज हमको मिले हैं। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मतलब इनसाइट मतलब देखिए, अगर हम खूब कुछ सिखा रहे हैं किसी को तो आगे वाले को लगना चाहिए यार ये बहुत इजी है, इसको बहुत इजी तरीके से सीखना है और सिखाना है। ऐसा नहीं कि यार मैटलैब यार ये वो, नहीं, ये बच्चों वाला काम है, तो कुछ भी कर सकता है। हमारा सिखाने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए। आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं? ये एक और एप्पल, ये एप्पल दिखा के बोलते हैं कि एप्पल है, बच्चों को तभी पता चलता है कि यार ये एप्पल है। जी जी। ऐसा नहीं है कि यार ये ए फॉर एप्पल, एप्पल होता कैसे, ये तो बता दो। शायद आपने इतना ही लूसिड करके शायद बताया है on myonlineshiksha.com एंड आई थिंक व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को ये कोर्स जरूर साइन अप करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स एज वी डिस्कस्ड इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सो थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वी हैड अ ग्रेट टॉक एंड वी हैड अ वेरी इंफॉर्मेटिव चैट विद यू टुडे। आई होप इट वाज वेरी एंजॉयबल फॉर यू आल्सो। हाँ अदिति, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली शेयरिंग, वो बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग करके, तो शेयरिंग द नॉलेज, अगर हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो हमारा भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि यार हमें कुछ दे रहे हैं और शेयरिंग, आई मीन कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो खुशी मिलता है जी। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा नहीं है कि यार, वही तो बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है जो मैंने दिया है वो किक स्टार्ट के लिए है, सिर्फ जानने के लिए है कि मैटलैब क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर पाएंगे, कहाँ तक आप पहुंच पाएंगे। अगर आपको बेसिक फाउंडेशन पता चल गया तो आप खेल सकते हैं। अगर आपको साइकिल भी चलाना आ सकता है तो आप कार भी चला सकते हैं। आपको चलना आ गया तो आप साइकिल चला सकते हैं, अगर साइकिल आ गया तो बाइक चला सकते हैं, कार, एरोप्लेन, कुछ भी कर सकते हैं।
तो पहले चाहिए ना। डेफिनेटली। तो हम बोल रहे हैं कि यार पहले उंगली पकड़ लो, चलना सीखो, उसके बाद तुम कुछ भी करो। उसके लिए हम लोग हैं बोल के देने के लिए, सिखाने के लिए हम लोग हैं। वी आर हियर टू टीच यू अप, वी आर हियर टू ट्रेन यू अप, बट इट इज योर इंटरेस्ट व्हाट यू वांट टू लर्न। आप क्या सीखना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है, व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। यू वांट टू बी अ इंजीनियर, बी अ इंजीनियर। यू वांट टू बी अ डॉक्टर, बी अ डॉक्टर। यू वांट टू बी अ साइकिल वाला, यू बिकम अ साइकिल वाला, बट बी अ साइकिल वाला। ऐसा नहीं है कि यार मैं साइकिल वाला बन रहा था, कोई मेरे को बोला कि इंजीनियर बनने के लिए मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। नहीं, डोंट बी गेट इन्फ्लुएंस। जी। हाँ, इन्फ्लुएंस कुछ जगह पे होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि सब जगह पे होना चाहिए। जी। अगर वो अच्छे के लिए बोल रहे तो ठीक है, अगर वो आपका इंटरेस्ट है, वही तो बता रहा हूँ कि रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब कई लोगों को मिस कंसेप्शन लगता है कि ये बहुत रॉकेट साइंस है। नहीं जी। ये बच्चों वाला साइंस है। यू वांट टू एंजॉय इट। सी आई स्टार्टेड, मेरा जो मैटलैब पर था, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। आपको एंजॉय करना चाहिए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छी तरीके से हमको समझाया ये सब के लिए, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। एंड फॉर माय व्यूअर्स, सर के कोर्सेज आर ऑन myonlineshiksha.com, so don't forget to sign up for the same, and this video will be also uploaded on the YouTube page of myonlineshiksha.com, so do subscribe it and like the video. Thank you so much. We'll meet again. Stay tuned for more such videos. Thank you so much. Keep learning and keep growing.